Hello everyone, welcome to Menu Education. In this video, we are going to discuss the most important question from teaching aptitude for MH B.Ed CET examinations. So this is the part 5 and last video series for MH B.Ed CET examination. Further, more videos regarding this MH B.Ed CET examination will be coming up. So stay tuned on this channel and do like this video and share this channel among your friends. So let's start this session. So in case if you want to join us for self-study program, so you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan India level and the counselor will guide you. In case if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the site where you can avail each and everything for B.Ed examination. So let's go to the website. So go to the manualedu.com. Here you can see the B.Ed entrance examination. Click on that. You will find the B.Ed CET examinations. So go here and you will see the live classes. So S2C live classes are available. Crash course are also available here. You can avail these courses. Self study courses भी आप opt कर सकते हो for B.Ed examination. So for 2025 as well as 2026 examination, sectional courses are available. That is for the general knowledge, teaching aptitude, mental ability, logical reasoning. Mock test आप avail कर सकते हो full length as well as the topic wise mock tests are available here. So let's start this session. The first question is, as per the 2011 census, which of the following is the least populated state in India? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड. एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्किम. सो सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 6.11 लाख. द सिक्किम सेंसस of 2011 says that population of Sikkim is the least in all of India. सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है. Next question is, according to the census 2011, the child sex ratio was dash per females per 1000 males. तो कितना child sex ratio क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो कितना है? 919, 909, 929, 939. And the correct answer is 919. So the ratio of female to male in the 0 to 6 age group is known as the child sex ratio. और इंडिया का जो child sex ratio है 927 इन द 2001 में था, जो कि घट के हो गया है कितना? 919 पे आ गया है. तो ये सोचने वाली बात है कि child sex ratio जो है वो कम हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच लिस्ट इज एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट में एजुकेशन मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल दैट टॉक्स अबाउट द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, रेसिडुअल लिस्ट है. तो किसमें जो है आपको एजुकेशन मिलेगा? सो एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट. So list of the Constitution of India and it is mentioned in the 7th schedule of the Indian Constitution. Next question is, which of the following is दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल? तो इसमें से जो है दूरदर्शन का एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल जो है वो कौन सा है? गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन, विद्या. एंड द करेक्ट आंसर इज ज्ञान दर्शन. सो ज्ञान दर्शन वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 26, 2000 में जो है इसको लॉन्च किया गया था. ये जो है दूरदर्शन का एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाई? तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी है वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है? डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट, इमोशनल क्लाइमेट एट होम, इनहेरिटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज emotional climate at home. Feeling of physical safety and emotional security are vitally important for the development of a student. तो जहाँ पर वो सेफ फील करेंगे इमोशनली और फिजिकली, वहाँ जो है उसको ज़्यादा इफेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू? तो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें मिसबिहेव कर रहे हैं. तो ये क्या बताता है? क्लास का किस तरह का क्लास है? प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, टू मेनी रूल्स, general indiscipline amongst students. And the correct answer is general indiscipline amongst students. So faculty must play a crucial role in adding students on the track with tact and diplomacy. They must make students aware about their future and explain the cons and bad behavior के बारे में बताना पड़ेगा, तभी जाकर आपका क्लास जो है वो प्रॉपरली चल पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यंग एडोलेसेंट रेबल टू एक्सप्रेस देयर. तो यंग एडोलेसेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेबल करते हैं.
तो क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड, देयर क्रिएटिविटी, देयर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम, देयर पर्सनल इनएडिक्वेसी, एंड द करेक्ट आंसर इज देयर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम. So teenager who are good and trustworthy sometimes resort to bad behavior for the quest of freedom के इसलिए जो है वो bad behavior भी कभी कभी अडॉप्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975. तो 1975 में कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी एजुकेशन से रिलेटेड? करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, मैकुले रिपोर्ट, राधा कृष्णन रिपोर्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज curriculum for the 10-year school. So the curriculum for the 10-year school was introduced in 1975 and the framework was published by the National Council of Educational Research and Training. और ये जो है NCERT ने ये फ्रेमवर्क दिया था. तो कब हुआ था? 1975 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. तो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो कौन सा है? When the instruction have begun, when the instruction have ended, only at the end of major unit of instruction, throughout the instruction process, and the correct answer is throughout the instructional process. So formative assessment refers to wide variety of methods that teachers use to conduct in process evaluation of a student comprehension, learning needs एंड एकेडमिक प्रोसेस ड्यूरिंग कोर्स. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स जो है आप क्या करते हो? असेस करते हो, इवेलुएट करते हो. और यहीं पर अगर समेटिव है तो समेटिव का मतलब क्या है कि आप जो है एंड ऑफ द कोर्स जो है उसका इवेलुएशन करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP लॉन्च्ड. तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया था? 1964, 1972, 1978, 1986, and the correct answer is 1978. So the program aims at eliminating illiteracy among adults of the age group 15 to 35. तो जो 15 to 35 एज ग्रुप में आते हैं और जिनको लिटरेसी नहीं है उनको एलिमिनेट करने के लिए जो है नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम जो है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था 1978 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 37, आर्टिकल 45, एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 45. सो आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 14 years. तो ये DPSP का पार्ट है. अब जो है इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट मेंशन इन आर्टिकल 21A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय. तो ये स्ट्रक्चर जो है एजुकेशन का कब प्रपोज हुआ था? एजुकेशन कमीशन 1964, राममूर्ति कमीशन 1990, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, एंड द करेक्ट आंसर इज एजुकेशन कमीशन 1964. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन आर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपिंग मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है ये इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है क्लास में, कौन सा टेक्निक बेस्ट होगा टीचिंग का? डिबेट, डिस्कशन, प्रैक्टिकल्स, ग्रुप वर्क विथ अ लेक्चर, लेक्चर एंड क्लास नोट, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चंस, एंड द करेक्ट आंसर इज लेक्चर एंड क्लास नोट्स. Some advantage of lecture include great teacher can role in the classroom and facilitate large classroom communication. यहाँ पे आप जो है डिबेट डिस्कशन करोगे तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो वो सही से हो नहीं पाएगा. तो आप लेक्चर दो और क्लास नोट्स वगैरह प्रोवाइड करके आप निकल जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मैथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम. तो मिक्स क्लास है, को एजुकेशन है, कोएड एजुकेशन है, तो किस तरह से जो है आप इसको ये करोगे, कोऑपरेट करोगे दोनों में. आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, सिटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन रिलेशंस, एंड द करेक्ट आंसर इज
सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट के लिए आप ये कर दोगे जहाँ पर जो है सब मिलकर जो है प्रोजेक्ट करेंगे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। मिक्स्ड जेंडर पेयर्स हेल्प पार्टिसिपेंट डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड असर्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, तो टीचर ट्रेनिंग जो है वो किस लिए नेसेसरी है। इंक्रीज टीचिंग स्किल्स, अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, ऑल ऑफ द एबव, and the correct answer is all of the above. So teacher education refers to the policies and procedure designed to equip potential teacher with knowledge, attitude, behavior। ये सारी चीज़ें आप में स्किल डेवलप करना है, आप किस तरह से जो है आपका नॉलेज किस तरह से इंक्रीज हो, ये सारी चीज़ें जो है टीचर ट्रेनिंग का जो है वो पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट, तो मदर टंग में जो है किस तरह से स्टूडेंट को हेल्प करता है। इंटरप्रेट, क्रिएट, reproduce, easily comprehend, and the correct answer is easily comprehend. So student learn better through their mother tongue, तो ये जो है बेसिक एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में ही देना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, तो ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि सारे चिल्ड्रेन में जो है सभी बच्चों में एक पोटेंशियल होता है सीखने का, वो सीखेंगे। फ्रेडरिक फ्रोवेल, जॉन डुई, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, मारिया मोंटेसरी, and the correct answer is Frederick Froebel. So Frederick William August Froebel laid the foundation for modern education based on the recognition that children have unique needs and capabilities. Next question is you want to develop cooperation and team spirit in students, which activities would you propose? तो आप चाहते हो कि टीम एक्टिविटी हो, डेवलप हो, सब एक दूसरे से मिलकर काम करें, कोऑपरेट करें, तो क्या जो है आप प्रपोज करोगे। आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट वर्क। सो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग टीम वर्क, जहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क में टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पहले एजुकेशनल मिनिस्टर कौन बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, श्री हुमायूं कबीर, MC चागला, and the correct answer is Maulana Abul Kalam Azad. Served as the first Minister of Education of independent India from 1947 to 1958 and he was the youngest president of the Indian National Congress। 1923 में बने थे, इन दिल्ली सेशन में आपको ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन पार्टिकुलर क्लास, हाउ विल यू मोटिवेट दिस स्टूडेंट टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास, तो स्टूडेंट हैं जो क्लास में फेल कर गए हैं तो उसको आप किस तरह से जो है मोटिवेट करोगे कि आप कैसे आपको पढ़ना है। बाय गार्जियंस काउंसलिंग, बाय साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बाय फ्रेंड्स काउंसलिंग, बाय टीचर्स काउंसलिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज बाय साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। सो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एम्स टू हेल्प people manage their difficulties and transform personal problem into their own personal growth, तो ये जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू जो है हम इस तरह की सिचुएशन को ला सकते हैं। So these are the 20 most important question from teaching aptitude section we have discussed for the B.Ed examination. So if you guys have any query you can write in the comment section. Hope you guys have enjoyed this session well. So do like and share this video. With that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.